কেতিয়া নাগৰিকত্ব পাব হিন্দু বাংলাদেশীয়ে? আজি পশ্চিমবংগত এখন জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি সময় ঘোষণা কৰিলে বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। আৰু অমিত শ্বাহে আজি স্পষ্টভাৱে জনালে যে এই আইনখন এতিয়া প্ৰৱৰ্তন কৰি সকলো যিসকল পূব পাকিস্তানৰ পৰা অহা আৰু বাংলাদেশৰ পৰা অহা নাগৰিকত্বৰ অভাৱত আছে হিন্দু লোক তেওঁলোকক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব। কেতিয়া নাগৰিকত্ব পাব হিন্দু বাংলাদেশীয়ে? নাগৰিকত্ব কেতিয়া পাব তাৰ উত্তৰ দিছে অমিত শ্বাহে। আজি পশ্চিমবংগৰ মটুৱাত এখন জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। মটুৱা সেই অঞ্চলটো যিটো অঞ্চলত পূব পাকিস্তান আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বাংলাদেশৰ পৰা অহা যথেষ্ট সংখ্যক হিন্দু লোক আছে। তাৰে একাংশৰ ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব আছে, কিন্তু বেছিভাগৰে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব নাই। তেওঁলোকৰ মাজত আজি জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে আৰু তাৰ পাছত এই জনসভাত ঘোষণা কৰিলে যে কোভিড ভেকচিনেশ্যন, কোভিডৰ টীকাকৰণৰ কাম শেষ হোৱাৰ পাছতে এই নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব। পশ্চিমবংগৰ মটুৱাত ঘোষণা কৰিলে তেওঁৰ সন্মুখত মটুৱাৰ বাসিন্দাসকল আছিল আৰু মটুৱা সেই টুকুৰা ঠাই য'লৈ পূব পাকিস্তানৰ পৰা আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বাংলাদেশৰ পৰা ধৰ্মীয় উৎপীড়নৰ বলি হৈ বহু হিন্দু লোকৰ আগমন ঘটিছিল, তেওঁলোক সেই এলেকাসমূহত আছে। কিন্তু মটুৱাত বহু লোকৰ হিন্দু বাংলাদেশী লোকৰ নাগৰিকত্ব নাই, নাগৰিকত্ব পোৱা নাই। আৰু এইসকল লোক তেওঁলোকক সন্মুখত ৰাখি অমিত শ্বাহে ক'লে যে তেওঁলোক কথা দি কথা ৰখা মানুহ, সেইকাৰণে তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন আনিছে। আৰু মমতা বেনাৰ্জীয়ে বাধা দিব বুলি কৈ আছে, বিভিন্ন অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে। এই অপপ্ৰচাৰত ভুল যাব নালাগে। আৰু তেওঁ এই কথাও স্পষ্ট কৰি দিলে যে কৰোনাৰ ভেকচিনেশ্যনৰ কাম যিদিনাই শেষ হ'ব সেইদিনাই হিন্দু বাংলাদেশীয়ে নাগৰিকত্ব পাব। মটুৱাবাসীক নিশ্চয়তা দিলে আৰু মটুৱাবাসীক ক'লে আপোনালোকে নাগৰিকত্ব পাব, সেইদিন দূৰ নহয়। আৰু তেওঁলোক কথা ৰখা মানুহ, তেওঁলোকে কথা ৰাখিব আৰু নাগৰিকত্ব দিব। বিশাল জনসভা মটুৱা বাছি লৈছিল এই কাৰণেই যে মটুৱাত হিন্দু বাংলাদেশীৰ সংখ্যা বেছি আৰু তেওঁলোক বাংলাদেশৰ পৰা ধৰ্মীয় উৎপীড়নৰ বলি হৈ ইয়ালৈ আহিছিল আৰু তেওঁলোকক নাগৰিকত্ব দিবৰ কাৰণে পূৰ্বে চৰকাৰে চেষ্টা চলাইছিল যদিও বিভিন্ন সময়ত নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিব পৰা নাছিল। এইবাৰ তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে সেই অনুসৰি তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন CAA-ৰ জৰিয়তে, চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট, ইয়াৰ জৰিয়তে নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিব, স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰিলে অমিত শ্বাহে। और ये CAA के लिए जो भ्रांति फैलाते हैं उनको कठोर जवाब अपने मुंह से मैं दूंगा, मैं जरूर आऊंगा। ये मीडिया वाले और तृणमूल कांग्रेस वाले सभी CAA के बारे में सुनना चाहते हैं। मुझे मालूम है, मैं बताता हूं CAA के बारे में, डंके की चोट पर बताता हूं। गले लगाना तो दूर रहा, नागरिकता नहीं दी। 2018 में हमने वादा किया था कि 19 में नरेंद्र मोदी सरकार चुनकर लाई है, हम सिटीजनशिप में अमेंडमेंट कर कर कानून लाएंगे जो मेरे मतवा समाज के भाइयों को भारत की नागरिकता देगा, भारत की नागरिकता देगा। हमने 2018 में वादा किया था, 19 में मतवा समाज ने हमारी झोली कमल के फूलों से भर दी। मोदी सरकार बनी और हमने तनिक भर भी देर नहीं की, 2020 में ही हम CAA लेकर आए और आज कानून अस्तित्व में आए। बीच में कोरोना आ गया, ममता दीदी ने शुरू कर दिया कि झूठा वादा है, कुछ होगा नहीं, देंगे नहीं, और वो देंगे तो हम देने देंगे नहीं, हम उसको रोकेंगे, मेरी जान है तब तक नहीं होगा। ममता दीदी, हम तो वो लोग हैं जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। हमने CAA का कानून पारित किया है। मैं आज इस पवित्र भूमि पर वादा कर कर जाता हूं, जैसे ही ये वैक्सीनेशन का काम समाप्त होता है, जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त करेगी। ये देश की संसद का कानून है, आप कैसे रोकोगी? और वैसे भी अब रोकने की स्थिति में भी नहीं रहोगी, क्योंकि अप्रैल के बाद तो आप मुख्यमंत्री भी नहीं रहने वाली है ममता दीदी। मुझे बताओ भाइयों बहनों, रहने वाली है क्या? जोर से बोलो, रहने वाली है क्या? और ये CAA के लिए जो भ्रांति फैलाते हैं उनको कठोर जवाब अपने मुंह से मैं दूंगा, मैं जरूर आऊंगा। ये मीडिया वाले
और तृणमूल कांग्रेस वाले सभी सीएए के बारे में सुनना चाहते हैं। मुझे मालूम है, मैं बताता हूं सीएए के बारे में, डंके की चोट पर बताता हूं। गले लगाना तो दूर रहा, नागरिकता नहीं दी। 2018 में हमने वादा किया था कि 19 में नरेंद्र मोदी सरकार चुनकर लाई है, हम सिटीजनशिप में अमेंडमेंट कर कर कानून लाएंगे जो मेरे मतवा समाज के भाइयों को भारत की नागरिकता देगा, भारत की नागरिकता देगा। हमने 2018 में वादा किया था, 19 में मतवा समाज ने हमारी झोली कमल के फूलों से भर दी। मोदी सरकार बनी और हमने तनिक भर भी देर नहीं की, 2020 में ही हम सीए लेकर आए और आज कानून अस्तित्व में आए। बीच में कोरोना आ गया, ममता दीदी ने शुरू कर दिया कि झूठा वादा है, कुछ होगा नहीं, देंगे नहीं, और वो देंगे तो हम देने देंगे नहीं, हम उसको रोकेंगे, मेरी जान है तब तक नहीं होगा। ममता दीदी, हम तो वो लोग हैं जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। हमने सीए का कानून पारित किया है। मैं आज इस पवित्र भूमि पर वादा कर कर जाता हूं, जैसे ही ये वैक्सीनेशन का काम समाप्त होता है, जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त करेगी। ये देश की संसद का कानून है, आप कैसे रोकोगी? और वैसे भी अब रोकने की स्थिति में भी नहीं रहोगी, क्योंकि अप्रैल के बाद तो आप मुख्यमंत्री भी नहीं रहने वाली है ममता दीदी। मुझे बताओ भाइयों बहनों, रहने वाली है क्या? जोर से बोलो, रहने वाली है क्या? और ये सीए के लिए जो भ्रांति फैलाते हैं, उनको कठोर जवाब अपने मुंह से मैं दूंगा, मैं जरूर आऊंगा। ये मीडिया वाले और तृणमूल कांग्रेस वाले सभी सीए के बारे में सुनना चाहते हैं। मुझे मालूम है, मैं बताता हूं सीए के बारे में, डंके की चोट पर बताता हूं। गले लगाना तो दूर रहा, नागरिकता नहीं दी। 2018 में हमने वादा किया था कि 19 में नरेंद्र मोदी सरकार चुनकर लाई है, हम सिटीजनशिप में अमेंडमेंट कर कर कानून लाएंगे जो मेरे मतवा समाज के भाइयों को भारत की नागरिकता देगा, भारत की नागरिकता देगा। हमने 2018 में वादा किया था, 19 में मतवा समाज ने हमारी झोली कमल के फूलों से भर दी। मोदी सरकार बनी और हमने तनिक भर भी देर नहीं की, 2020 में ही हम सीए लेकर आए और आज कानून अस्तित्व में आए। बीच में कोरोना आ गया, ममता दीदी ने शुरू कर दिया कि झूठा वादा है, कुछ होगा नहीं, देंगे नहीं, और वो देंगे तो हम देने देंगे नहीं, हम उसको रोकेंगे, मेरी जान है तब तक नहीं होगा। ममता दीदी, हम तो वो लोग हैं जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। हमने सीए का कानून पारित किया है। मैं आज इस पवित्र भूमि पर वादा कर कर जाता हूं, जैसे ही ये वैक्सीनेशन का काम समाप्त होता है, जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त करेगी। ये देश की संसद का कानून है, आप कैसे रोकोगी? और वैसे भी अब रोकने की स्थिति में भी नहीं रहोगी, क्योंकि अप्रैल के बाद तो आप मुख्यमंत्री भी नहीं रहने वाली है ममता दीदी। मुझे बताओ भाइयों बहनों, रहने वाली है क्या? जोर से बोलो, रहने वाली है क्या?